Assalamu alaikum students, welcome back to the class. Our today's lecture is the detailed reaction of the Krebs cycle or the citric acid cycle. In the previous lecture we just go through what is citric acid cycle or the Krebs cycle. We have seen that in the citric acid cycle the pyruvate that formed during the glycolysis or the breakdown of the glucose move from cytosol and come into the mitochondria, and here it converted into the acetyl coenzyme A, and then the citric acid cycle start in the mitochondria. So let's deal with the detailed reaction of the Krebs cycle one by one. Here in the diagram you can see that the pyruvate from the glycolysis, two molecules per glucose break down into the pyruvate and it converted into the acetyl coenzyme A by the utilizing the coenzyme A and releasing the carbon dioxide, and the reduction of the NADH into the NADH and hydrogen ion are released. These acetyl coenzyme A enter into the Krebs cycle, and here the Krebs cycle the two carbon containing atom converting into the 6 carbon containing compound, and then into the 4 carbon containing compound, and the whole cycle continue. Now let's deal with the 8 steps that take place during this reaction. So these are the reactions of the Krebs cycle with the enzymes. So total: citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, fumarate, malate, and oxaloacetate. These are the products of the Krebs cycle, and their different enzymes are involved in the Krebs cycle. Now we will discuss these steps in detail. Steps of the citric acid cycles. In the previous lecture, we have the preview of the molecules that produce during the citric acid cycle or the TCA cycle. Now we are going to study the step-by-step production of NADH, FADH2, ATP and GTP during the TCA cycle. The first step is in the first step, the citric acid cycle, एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्वाइन विद द 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट. क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एक कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, डेट इज द ऑक्सैलोएसीटेट, एंड रिलीजिंग द कोएंजाइम ए ग्रुप एंड फॉर्मिंग अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड द सिट्रेट. तो क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ज्वाइन करता है किसके साथ, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ. ये कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. तो जब वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ज्वाइन करता है तो वो क्या करता है, वो अपना जो कोएंजाइम ए ग्रुप है उसको क्या करता है, रिलीज करता है और कन्वर्ट हो जाता है अ कंपाउंड दैट कंटेन द 6 कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज द सिट्रेट. So the first step is the formation of the conversion of the acetyl coenzyme A into the oxaloacetate, and this oxaloacetate converted into the citrate. Now let me show you the reaction. Here in the diagram you can see the oxidation of pyruvate and citric acid cycle. So what happened during the first step? During the first step, acetyl coenzyme A, that is the 2 carbon containing molecule, is converted into the 6 carbon containing molecule, that is the citrate. तो क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होता है सिट्रेट के अंदर, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है और वो अपना क्या करता है, यहाँ पे कोएंजाइम ए ग्रुप जो है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है, और ये इसके दरमियान जो एंजाइम यूज़ होता है डेट इज द सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट सिंथेज की मौजूदगी में एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, डेट इज द सिट्रेट. अब सिट्रेट, तो ये था फर्स्ट रिएक्शन किसका, Krebs साइकिल का. अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है.
In the second step, citrate is converted into its isomer, that is the isocitrate. तो second step क्या है? Conversion of citrate into its isomer, that is known as the isocitrate. So this is actually a two-step process involving first the removal and then the addition of water molecule. तो पहले जो है वो water molecule जब remove होता है, then water molecule जो है वो add होता है, which is why citric acid sometimes have the 9 step instead of the 8. So mostly there are the 8 steps are listed, but sometimes these are the 9 step when because there is the removal and the addition of water molecule. So second step में क्या होता है, citrate जो है वो convert करता है अपने एक isomer में जिसको हम isocitrate कहते हैं. Let me show you the reaction. Here in the diagram you can see that the citrate is converting into the isocitrate in the enzyme, in the presence of an enzyme aconitase. Aconitase is enzyme that convert the citrate into the isocitrate. तो isocitrate जो है वो isomer है citrate का और ये convert होता है in the presence of aconitase enzyme. तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज्ड हो रहा है और एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है फर्स्ट स्टेप में. और सेकंड स्टेप में जो सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है कन्वर्टिंग इनटू द आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन आइटम पर ही मुश्तमिल होता है. अगर आप इसके फार्मूला में देखो तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है इसके अंदर क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं. तो दिस इज़ द आइसोमर ऑफ द सिट्रेट. तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, what happened during the third step? In the third step, isocitrate is oxidized. It means oxidation of the isocitrate take place and it release the molecule of carbon dioxide. So 5 carbon molecule left behind. This 5 carbon molecule is known as the alpha ketoglutarate. तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो आइसोसिट्रेट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है और वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटरेट में. एंड ड्यूरिंग दिस स्टेप NAD+ जो है वो रिड्यूस करता है NADH में. और जो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व है डेट इज़ नोन एज द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इम्पोर्टेंट एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का बिकॉज इट रेगुलेट द स्पीड ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल. तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है आइसोसिट्रेट की, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करता है. NAD+ की जो है वो रिडक्शन होगी, वो कन्वर्ट होता है NADH में. और एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. और जो है वो क्या करता है, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में. क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रही है तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगी वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होगी. दैट इज़ नोन एज द अल्फा कीटोग्लूटरेट. लेट मी शो यू द रिएक्शन इन डिटेल. Here in the third step you can see that the isocitrate in the presence of an enzyme isocitrate dehydrogenase are converting into the alpha ketoglutarate and reduction of the NAD+ into NADH and हाइड्रोजन आयन इज रिलीज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज आल्सो रिलीज. तो सी जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट करेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट में जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है. तो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी डैट C2 C6 C6. तो साथ साथ पूरी साइकिल में आपको पता चलता जाएगा इस स्कीम में कि एक जो प्रोडक्ट बन रही है वो कितने कार्बन आइटम्स पे जो है वो मुश्तमिल होती है. सो दिस इज़ द third step of the Krebs cycle. During the fourth step that is similar to the third, in this case alpha ketoglutarate that is oxidized reducing NAD+ to NADH. तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेशन होती है और NAD जो है उसकी रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट करेगा NADH में. और वो क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिलीज होगा. सो द रिमेनिंग 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स पिक अप कोएंजाइम A फॉर्मिंग द अनस्टेबल कंपाउंड दैट इज नोन एज द सक्सिनाइल कोएंजाइम A. तो क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सबसे पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बाय यूटिलाइजिंग द कोएंजाइम A. तो क्या होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A. और यहाँ पे NAD+ जो है उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा. तो अब तक 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो चुके हैं. ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ स्टेप में
अल्फा कीटोग्लिसरेट की ऑक्सीडेशन होती है और वह कन्वर्ट करता है इनटू एन अनस्टेबल एंजाइम कंपाउंड दैट इज नोन एज द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. The enzyme catalyzing this step is known as the alpha ketoglutarate dehydrogenase. So this enzyme also regulates the citric acid cycle. Here in the figure you can see the fourth step where the alpha ketoglutarate in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase are converting into the succinyl coenzyme A and reduction हो रही है किसकी NAD प्लस की into NADH में और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है. एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो थर्ड स्टेप में रिलीज हुआ था और एक जो है वो फोर्थ स्टेप में. थर्ड स्टेप में जब आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट किया था अल्फा कीटोग्लिसरेट में और देन अल्फा कीटोग्लिसरेट जब उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी तो तब भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ था. In the step 5, the coenzyme A of succinyl coenzyme A is replaced by a phosphate group. तो यहाँ पे क्या होता है जो coenzyme A है succinyl coenzyme A का वो replace करता है phosphate group के which is then transferred to ADP to make ATP. तो यहाँ पे phosphate group जो है वो inorganic phosphate जो है वो transfer करता है ADP को जो के convert करता है ATP में. ठीक है. Sometime जो GTP है ATP और GTP जो है दे आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी और ADP और GDP बोथ आर द सेम थिंग्स. हेयर डिफरेंस क्या है कि वो एडेनिन डाइफॉस्फेट और ये गुआनिन डाइफॉस्फेट है. तो एडेनिन की जगह पे वो गुआनिन आ जाता है. तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और GTP ये गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बोथ आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. तो guanosine ट्राइफॉस्फेट या guanine ट्राइफॉस्फेट जो है these are the products. So the 4 carbon molecule produced in this step is called the succinate. तो यहाँ पे जो है succinyl coenzyme जो है converting into the succinate and ATP formation take place. Here in the diagram you can see that succinyl coenzyme A release this coenzyme A group and converting into the succinate in the presence of succinyl coenzyme A synthetase enzyme. तो एंजाइम जो है वो synthetase यूज़ हो रहा है और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो GDP यूज़ करेगा और कन्वर्ट करेगा इनटू द GTP. GTP क्या है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. तो दिस वाज द फिफ्थ स्टेप ऑफ द citric acid cycle. In the sixth step succinate is oxidized in. यहाँ पे succinate जो है उसकी oxidation होती है. It form another molecule that contain the 4 carbon atom known as the fumarate. In this reaction 2 hydrogen atoms with their electrons are transferred to the FAD producing the FADH2. तो यहाँ पे FADH प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि 2 हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ट्रांसफ़र होते हैं to FAD that is and then give rise to the FADH2. So the enzyme that carry out this step is embedded in the inner membrane of the mitochondria. तो वो एंजाइम जो कि सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर मैट्रिक्स ऑफ द mitochondria. FADH2 can transfer its electron directly into the electron transport chain. तो ये FADH2 जो है ये क्या करता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. In this scheme you can see that succinate by the oxidation are converting into the fumarate और एंजाइम कौन सा है? succinate dehydrogenase. और यहाँ पे FAD जो है वो किस में उसकी रिडक्शन हो रही है? FADH2 में. ठीक है. तो ये कौन सा ग्रुप ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 6. In step number 7, water is added to the 4 carbon molecule fumarate, converting it into another 4 carbon molecule called the malate. तो यहाँ step number 7 में क्या होता है? वाटर molecule की addition होती है और जो fumarate है convert करता है into the malate that is also the 4 carbon containing molecule. While in the 8th step that is the last step of the citric acid cycle. Here the oxaloacetate that starting of 4 carbon compound is regenerated by the oxidation of malate. तो क्या होता है? malate की जब oxidation होगी तो oxaloacetate जो है वो regenerate करेगा. Another molecule of NAD plus is reduced to NADH in this process. So this is how the oxaloacetate regenerate during the last step of the
citric acid cycle and again the cycle continue, it will again participate in the citric acid cycle और इस तरह से cycle जो है वो continue रहता है. Let me show you the reaction and the animation of the TCA cycle in detail. हेयर इन द स्कीम यू कैन सी डेट द फ्यूमरेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो किस में कन्वर्ट करता है, मलेट में. और एंजाइम कौन सा है, फ्यूमरेज. और यहाँ पे वाटर मालिक्यूल जो है उसकी एडिशन होती है और मलेट जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू द एक्जेलो एसीटेट दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल. एक्जेलो एसीटेट जो है वो फिर दोबारा से, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो दोबारा से सिट्रेट सिंथेस की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. तो यहाँ से पूरे का पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यू करता है. अब मैं आपको इस रिएक्शन का एनिमेशन दिखाऊंगी जिससे आपको यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन मोर डिटेल. So here in the image you can see that how the pyruvate are converting into the acetyl coenzyme A by adding the coenzyme A group. और NAD जो है उसकी रिडक्शन हो रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल जो है वो रिलीज़ करेगा. तो इस तरह से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होता है सिट्रेट सिंथेज में. ठीक है, और वो अपना कोएंजाइम ए ग्रुप जो है वो रिमूव करता है और कन्वर्ट करता है एकोनिटेस एंजाइम की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में. आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस वहाँ पे क्या होगा, NAD प्लस. यहाँ पे आप दोबारा देख रहे हो कि उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. ठीक है, वो कन्वर्ट करेगा ऑक्सैलोसक्सिनेट में. ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हो रहा है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कोएंजाइम ए ग्रुप है वो दोबारा से अटैच हो जाता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो रिमूव होगी और वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे वो दोबारा से जो है वो अपना कोएंजाइम ए ग्रुप रिमूव करेगा और GDP जो है वो कन्वर्ट करेगा GTP में. यहाँ पे सक्सिनेट फॉर्मेशन होगी. सक्सिनेट फॉर्मेशन जो है वो फिर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस की मौजूदगी में यूबिक्विनोन ग्रुप जो है वो अटैच करेगा और वो फ्यूमोरेट में कन्वर्ट करेगा. फिर कार्बोनेशन होगी वो, और वो किस में करें, फ्यूमरेट जो है वो मलेट में कन्वर्ट करेगा. मलेट जो है वो दोबारा से उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्जेलोसिटेट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी एंड प्रोडक्ट्स में क्या है, 3 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज़ हो रहे हैं. ठीक है, और इस तरह से ये इसके प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल है. ठीक है, 3 कार्बन मालिक्यूल्स. ठीक है, और GTP. ठीक है, so this is all about the TCA cycle in detail. और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. ठीक है, जिसमें आपने पूरे रिएक्शंस भी देखे, स्टेप बाय स्टेप उनके जो है वो साइकिल भी देखा और इसकी एनिमेशन भी देखे, जिससे पूरे का पूरा स्केच जो है वो क्लियर हो जाता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बना और कार्बोक्सिलिक एसिड का फ़ायदा, ये जो TCA साइकिल है इसका यूज़ क्या है. ठीक है, इसमें कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको इस इक्वेशन से जो है वो पता चल जाता है.